They make music out of junk and have inspired several schools to have their own junk band. Dharavi Rocks comprises schoolgoers and school dropouts who can set your foot tapping with canisters and buckets. They are here in our studio today to showcase their work and to speak about their lives around their work. So let's hear their brand of music. दूरदर्शन में आके धारावी के बच्चों ने जो कर दी है कमाल, धारावी के बच्चों ने जो कर दी है कमाल, धारावी के बच्चों ने जो कर दी है कमाल, ढोल बजा के नचा के हुआ झूले लाल, झूले लाल, झूले 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 लाल, झूले 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 लाल, झूले 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 लाल, झूले झूले लाल, झूले झूले लाल 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 झूले। धारावी के बच्चों ने जो कर दी है कमाल, धारावी के बच्चों ने जो कर दी है कमाल, बजा के बजा के झूले लाल, झूले 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 रेडी झूले 1 2 3 4 अभी उस्ताद मिनाज का परफॉर्मेंस कौन? ओ लाल मेरी बद रखियो बला झूले लालन, लाल मेरी बद रखियो बला झूले लालन, जिंदड़ी ता शेवन ता शकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली ता पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, शकी शाबाश कलंदर। So Abhijit, that was a very enjoyable and energetic performance. Thank you so much. How long have you been associated with Dharavi Rocks? In fact, I've been teaching these awesome kids for the last 5 years. 5 years. And how do you keep yourself engaged with all of this? I'm so engaged that I have a 9 to 5 job. In fact, 9 to 7 job. Okay. And after What do you do? office, What do you do? I'm a marketing professional. Otherwise. Okay. So Mumbai में रहना है तो rent भरने के लिए कुछ करना पड़ता है. But after that, after my job, I go to Dharavi and teach these kids. Been doing that for 5 years, and after 5 years, the band has become so big that we have done more than 150 performances across India. Okay. And we have collaborated with some of the biggest artists like Mr. Amitabh Bachchan, Salman Khan, Karsh Kale, Agni, Indian Ocean, so many bands, and these kids have gone to places. कभी-कभी बच्चे प्लेन में भी जाते हैं शो करने के लिए. So कभी इमेजिन नहीं किया था कि धारावी के जो बच्चे हैं वो इतने बड़े हो जाएंगे, और इसके लिए एक ही रीज़न है, because they are all very talented. The reason. So how much of time do you invest per day with them? Mostly evenings, right? So you go there every evening? Not really every evening. मेरे generally 2 से 3 बार sessions होते हैं हफ्ते में. But whenever there are shows, whenever there are big shows and we have collaborating with different artists, then there are daily practice sessions. Because mostly in the evenings from say 7:30 to 9:30, 10, we have practice sessions. Oh, and you motivate all of them to come there every alternate day? They are all self-motivated because they enjoy what they do, and it really inspires them, and they come, they play, they enjoy themselves, they showcase their talent, and when they go back in their own area, they also act like a section leader. So जो ये बच्चे जाएंगे उनके एरिया में तो बाकी के बच्चे भी इंस्पायर होते हैं कि यार हमको भी ज्वाइन करना चाहिए. Right. So you are the brain behind this? Well, you know, all these are amazing kids, talented kids. I just got them all together, and we are giving them a platform. And मुझे बाकी को कुछ आता नहीं है. I'm a musician otherwise, so I thought I'll give back to the society by teaching them music. Wonderful. Thank you. Thank you so much. Oh, one more question. What are your future plans vis-a-vis Dharavi Rocks? Wow, future plans are very exciting. What we are planning to do is, first that we will collaborate with 5 Indian and 5 international artists, and we'll get an album out, which will be released on the international
platform, so that we will start touring abroad also. So because this has got so much of potential that India knows about it, some of the European countries also knows about it, but now it's time that we need to go abroad and start doing performances there and rock that crowd also. So what about the girls in the band? In fact, This there band used to right be now comprises only of boys. Yes, I know. That's a very valid question. So but we have a separate batch for girls, and slowly we will incorporate their performance in this as well, so that they will also get an equal platform. Surprised to know some of the girls also play drums like how these boys do. Oh, okay. Okay. Thanks. Thank you so much. सलमान, आप इस बैंड में सबसे पुराने हैं, तो आपने जब शुरू किया था उस समय कितने मेंबर्स थे और इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बने? क्योंकि मैंने सुना है ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हैं, तो आप बताइए सलमान। ये सब मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो फिर मतलब हम लोग सब एक प्लास्टिक पे बजाते थे, मतलब ऐसे खेलते कूदते हम लोग सब बजाते थे। तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि इसमें म्यूज़िक बजेगा। तो फिर हम लोग ने मतलब एक एरिया होता है जैसे धराई हुआ, मतलब हर गली में हम लोग जाते थे और फिर हम लोग ने ड्रम ढूंढना चालू करा एक एक गली में से। तो फिर उस पर हम लोग ने चेक करा। फिर तो आपने जो ड्रम ढूंढा तो वो किस तरह का ड्रम, मतलब किस चीज़ से बना था? रिसाइकल का है वो, मतलब वेस्ट जो फेंक देते हैं लोग। तो बकेट है, कैनिस्टर है, क्या था? बकेट था, बाल्टी था और अपना पेन ऑयल का ऐसा ड्रम है। अच्छा अच्छा। बोतल से, वो सब बोतल से फिर हम लोग ने फिर उसके ऊपर हम लोग ने टेप भी चिपकाए देख सकते। और फिर उस पर हम लोग ने म्यूजिक बताया कि मतलब सर ने हम लोग को, अभिजीत सर ने हम लोग ने सिखाया हम लोग को। अच्छा। कि आप लोग इस तरह से बजाओ तो उस पर एक आवाज़ आएगी। तो हम लोग ने सब जितने भी, फिर आस्ते आस्ते हम लोग सा ग्रुप बढ़ता गया, फिर और भी लोग आए। शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में तो हम लोग के जैसे अभी फिलहाल तो 10 थे। 10 से फिर और लोग हम लोग को देखे, मतलब हम लोग के फ्रेंड लोग बोले कि तुम लोग इतना अच्छा बजाते हो, यहाँ इतनी बड़े बड़े मतलब स्टेट पे जाते हो आप लोग। और नहीं, लेकिन शुरुआत में तो काफी दिन आप लोगों ने धारावी में ही बजाया होगा ना? हाँ, हम लोग काफी दिन प्रैक्टिस, अभिजीत सर ने हम लोग को काफी दिन हम लोग को प्रैक्टिस कराए। इस मतलब हम लोग को बहुत टाइम लग गया प्रैक्टिस करने में। फिर उसके बाद हम लोग को छोटे छोटे जगह पे, जैसे हम लोग ही ऐसी अगर हम लोग का जगह एरिया है, हम लोग वहीं पे प्रैक्टिस करते थे और ड्रम बजाते थे। अच्छा, तो आप में से कितने हैं जो गा सकते हैं? आपका नाम? मिनहाज। अच्छा, तो आप, क्योंकि आप अकेले गाते हो इस बैंड में, तो आपके पास कितने गाने हैं जो आपके स्टॉक में हैं और सबसे फेवरेट आपको क्या लगता है? मैं तो शुरू में मतलब मेरा एक दोस्त था, मैं मतलब दूसरी जगह जाता था पहले, तो वहाँ पे मतलब झगड़ा हो गया था, तो मेरे को निकाल दिया था वहाँ से। तो मेरे को लेके आया इधर पे, फिर मैं देखा लोग मतलब बजा रहे थे, तो मैं मतलब इन लोग के बाद आया, थोड़ा लेट में आया। अच्छा, कितने साल हो गए? फिर भी मेरे को 2 साल से ऊपर हो गए। अच्छा अच्छा। फिर मैं मतलब ऐसे ही गाता था, सर को मालूम नहीं था मैं गाता हूँ, मैं ऐसे ही मतलब गाता था। तो एक बार मेरा दोस्त ने सर को बोला सर ये मिनाज है ना जो गाता है गाना, तो सर बोले एक बार गा के दिखा। तो मैंने गाना गाया, एक कोई सा भी मतलब जो भी गाना निकलते थे, तो सर बोले तो अच्छा गाता है। फिर बाद में गाना लेके आए तो मेरे को सिखाया पूरा गाना। अच्छा। फिर उसके बाद मैं गाना गाया, फिर मेरा फेमस गाना यही है, चकी शाबाश कलंदर। अच्छा। फिर एक मतलब राइटर थी, वो मतलब लिखे थे गाना इंटरनेट के ऊपर, फिर उसके लिए रिकॉर्डिंग करने भी गए थे हम लोग सर हम लोग। तो फिर अभी सर मतलब मेरे को गाना लाते कभी भी तो सिखाते। हाँ, दमादम मस्त कलंदर के अलावा और कौन सा पॉपुलर गाना है आप लोगों का? एक तो बलम पिचकारी हम लोग ने एक बार किए थे। अच्छा अच्छा। वो भी सिखाए थे सर। हाँ, अच्छा। और मेरे को तो ये शकी शाबाश कलंदर पसंद है, इसलिए मैं हर शो में ये गाता ही हूँ। कितने हैं जो स्कूल जा रहे हैं आजकल? सारे के सारे ऑलमोस्ट? हाँ, एक्सेप्टिंग व्हाट,
3, एक्सेप्टिंग 3 और 4. तो शेड्यूल क्या रहता है आप लोगों का, आप बताओगे शेड्यूल क्या रहता है आपका? आप स्कूल जाते हो तो क्या शेड्यूल रहता है आप लोगों का? मतलब सुबह कितने बजे स्कूल जाते हो? मैं नाइट स्कूल में पढ़ता हूँ. नाइट. हाँ, नाइट स्कूल. नाइट स्कूल. अच्छा, तो फिर मतलब प्रैक्टिस करते हो आप 7 बजे से शाम को? हाँ. फिर नाइट स्कूल कब होता है? मैं सर से टाइम लेके आता हूँ. सर को बोलता हूँ क्या थोड़ा लेट आऊँगा. अच्छा अच्छा, तो कितने बजे आते हो प्रैक्टिस के लिए? मैं 9 बजे के बाद आता हूँ. और प्रैक्टिस कितनी देर चलती है? 7 से 10. तो 1 घंटा प्रैक्टिस आप हाँ. कर पाते हो? हाँ हाँ. अच्छा. वेडनेसडे को इसकी मतलब कि छुट्टी रहती है. हाँ, हाँ. ये चर्च में पढ़ता है सर माइकल में, तो वेडनेसडे को इसकी छुट्टी रहती है, तो ये एक टाइम निकाल के मतलब कि इसके लिए वो एक टाइम रहता है और बाकी सब टाइम प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये कैसे बना है? ये मतलब इसका हिस्ट्री क्या है? इसका हिस्ट्री मतलब कि जैसे कि वो प्लास्टिक वाले लोग रहते हैं, वो लोग सब मतलब कि जमा करे और इसको मतलब कि डाले, मतलब कि मशीन आती है उसमें डाल के इसको बनाए ना. फिर हम लोग मतलब कि गोदाम पे इधर गली गए, उधर ढूंढे हम लोग, और मतलब कि यहाँ वहाँ था तो उठाए वहाँ से. फिर हम लोग वहाँ मतलब कि थोड़ा हम लोग नहीं, ये किस चीज़ से बना है? ये एक प्लास्टिक से, रिसाइकल से, मतलब कि एक प्लास्टिक है और भी प्लास्टिक मिक्स होके ये बना है. अच्छा, उसके ऊपर और कुछ हाँ, और कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ, या मतलब खाली कि पहले सिंपल बाल्टी थी. हाँ, फिर हाँ. इसके बाद मतलब कि एक मैडम थे, उसको हमारे सामने बोला कि ये कि इसको कलर कर सकते क्या आपकी, इसको अभी पेंट करेंगे तो अच्छा दिखेगा. फिर वो मैडम ने पेंट करे इसके ऊपर, तरह का पेंट करे बस. अच्छा, लेकिन सबसे तो रंगीन वो वाला है ना? ये सारे ज़्यादा रंगीन है. तो कौन सा वर्कशॉप आपको सबसे अच्छा लगा? हम लोग को पुणे में कर्ष काले ने मतलब बुलाए थे, तो उधर पे हम लोग शो करने गए थे. NH7. हाँ हाँ. उधर पे मतलब पहली बार हम लोग कर्ष काले सर से मिले थे. इतना मालूम नहीं था कि हम लोग कि उनके साथ बजाएंगे हम लोग. तो फिर उन्होंने हमको चांस दिए कि आओ बजाओ. तो फिर बाकी ज़्यादा जन नहीं गए थे, 8 जन गए थे बस. और मैं उस टाइम पे ड्रम नहीं बजा रहा था, मैं डांस कर रहा था. अच्छा. हाँ, तो उस टाइम पे सर ने बोले कि तू ड्रम मत बजाना, तू डांस करना के. तो वहाँ पर मजा आई थी, क्योंकि उनके साथ बजाने में बहुत अच्छा लगा था और बहुत सारी पब्लिक थी. और हम लोग ने देखे कि पब्लिक कितने बहुत भीड़ थी और हम लोग को मज़ा भी बहुत आई वहाँ पर. आपको ड्रम बजाने को मना किया, डांस करने को बोला? हाँ, मैं डांस भी करता हूँ, ड्रम भी बजाता हूँ. अच्छा, डांसर हो तो डांस करोगे? हाँ, यहाँ पर भी ये भी तो डांसर है. अच्छा, तो मतलब धारावी रॉक्स जब परफॉर्म करता है तो आप दोनों डांस करते हो? नहीं, कभी कभी बाई चांस मैं अभी करना छोड़ दिया, बाकी जो भी होता है तो अब ये करता है. करते हो? हाँ. अच्छा, आप लोग एक ऐसा गाना बजाओ जो कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है और फिर उसके बाद आप उसके साथ डांस करोगे? हाँ, करेगा ना. हाँ? क्यों नहीं करेगा. चलो देखते हैं. धारावी के बच्चों ने जो कर दी है कमाल, धारावी के बच्चों ने जो कर दी है कमाल, ढोल बजा के नाच लगा चे हो गए झूले लाल, झूले लाल, झूले 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 लाल, झूले झूले झूले. अच्छा, आप लोगों के घर के बारे में बताइए. आप वहीं पे धारावी में रहते हैं सारे के सारे? आप पहले नाम बताइए अपना. मेरा नाम फैसल है और मैं ना माइम में रहता हूँ. तो कुछ लोग धारावी में भी रहते थे, तो उधर से यानी ये झोपड़े तोड़ दिया तो शिफ्टिंग हो गए उन लोग, यानी दूर रहते. फिर तो मिनाज है जो टिटवाला से आता है, यानी ये शो के बारे में सर उसको बताते हैं, तो वो टिटवाला से ट्रैवलिंग करके आता तलम्बा. तो हम लोग तो यानी बाजू में रहते, तो हम लोग को बोलते तो हम लोग जल्दी आ जाते. उसको यानी कि जैसे 2-4 जैसे परसों शो रहेगा तो उसको
पहले बोल देते, बोले कि मिनाज परसों शो है, तो फिर वो एक दिन पहले आ जाता है। तो यहीं है, दोस्त के घर पे आने रहता है, फिर उसके बाद शो रहता है, शो करने के बाद फिर वो घर पे जाता है। तो घर में कौन कौन है? घर में भाई है, मम्मी है और बहन है। क्या करते हैं? मम्मी क्या करती हैं? मम्मी यानी ये घर पे काम करते हैं और भाई जॉब पे जाता है, और जो मेरे से छोटे छोटे वो मेरे साथ में स्कूल जाते पढ़ने। अच्छा, तो धारावी रॉक्स में ज्वाइन कब किया आपने? ये कुछ 3 साल हो गया। तो इसको ज्वाइन करके कैसा आपको, मतलब कैसे महसूस हो रहा है, और कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, क्या एक्सपीरियंस रहा है? यानी कि पहले उतना, यानी ये पहले बहुत टाइम वेस्ट करते थे हम लोग, उतना नहीं सोचते कि ये करने का वो करने का। तो सब बजा रहे थे, मैं इसी बैठ के देख रहा था। तो सर मेरे को पूछे, बोले तू क्या बजाएगा? बोला सर आप जो देंगे वो बजाऊंगा। तो सर बोले अभी तू ना बॉटल बजा। तो फिर मैं जब से बॉटल बजाने लगा। अच्छा। तो फिर उतना नहीं टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम रहता तो फिर एकोन में आते हम लोग, सब ड्रम प्रैक्टिस करते साथ में। पहले क्या करते थे? पहले यानी स्कूल से आने के बाद फुटबॉल खेलने गया, दोस्त लोग के साथ ऐसी बाहर मस्ती करा, वही सब करते थे। तो अभी यानी टाइम मिलता है तो जाते हैं एकोन में, हम लोग सब साथ में ड्रम प्रैक्टिस करते। अच्छा, और फैमिली वाले खुश हैं कि नहीं? फैमिली वाले भी खुश है, यानी ये मम्मी को भी अच्छा लगता है कि बार बार जाके आते तो मम्मी को बताते तो मम्मी भी खुश होते। अच्छा, आप लोगों ने सबने ट्रैवल किया होगा बैंड के साथ, तो आपका सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल क्या था? गोवा के बारे में कौन बोलेगा? मेरा नाम शाहरुख है। हम लोग गोवा गए थे वोल्वो बस में, तो 3-4 दिन के लिए ट्रिप में थे। तो उधर ग्रैंड हयात होटल था, जो 5 स्टार होटल था, मतलब अच्छा होटल था। फिर हम लोग ने उधर शो करे, बहुत सी पब्लिक थी, और इतनी पब्लिक थी कि सब जो वहाँ जो पब्लिक देख भी रही थी ना, तो वो लोग भी सब हम लोग के साथ में आके बजा रहे थे। अरे वाह, अच्छा, तो उसी लिए अच्छा लगा? हाँ, उसी लिए अच्छा लगा। और हम लोग वहाँ बीच पे भी गए थे, और रात में मतलब हम लोग को मजे भी आई थी वहाँ, मतलब बहुत अच्छा लगा था गोवा में जाके। और जो ट्रैवल होता है ना आप लोगों का, उससे सीखने को क्या मिलता है? सीखने को हम लोग गोवा में आप जो गए थे, वहाँ पे परफॉर्मेंस में आप कह रहे हैं कि बाकी लोग आपके साथ गाना बजाना करने लगे, तो उसके अलावा जैसे आप सिटी जाते हो, किसी शहर जाते हो, वहाँ पे देखने को मिलता है या खाली परफॉर्मेंस करके वापस आ जाते हो? नहीं, हम लोग को घुमाने भी लेके जाते हैं सब जगह, मतलब आजू बाजू में जो भी फेमस चीज रहती है। जैसे हम हैदराबाद गए थे तो उधर 4 मीनार गए थे, जो फेमस रहता है ना, वहाँ सब घुमाने लेके जाते हैं हम लोग को। तो आपको लगता है कि क्योंकि आप धारावी रॉक्स में हैं, उसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये अवसर मिल रहा है ट्रैवल का? नहीं तो इसके अलावा नहीं जा पाते? हाँ, अच्छा। धारावी रॉक्स में आप रह के इसमें आप कितने साल रहना चाहते हैं, या परमानेंटली रहना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, या और कुछ ख्वाहिश है? सब लोगों को म्यूजिशियन बनना है, या और किसी को कुछ लॉयर बनना है, ऑफिसर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, क्या कुछ किसी को और कोई ख्वाहिश है, या सबको? इसको एक्टर बनना है। हाँ, आपको फुटबॉल प्लेयर बनना है? यानी हम लोग सोच के रखे कि जब 2 चीज़ पे फोकस कर रहे, तो खुदा ना खास करे कभी एक साइड से कुछ हो गया तो दूसरे साइड के सपोर्ट पे रहे। तो अभी म्यूज़िक पे भी उतना ही फोकस करते और फुटबॉल पे भी उतना ही फोकस करते। तो हम लोग मैच खेलने गए थे। लेकिन फुटबॉल में जो है उसमें आमदनी होती है, कोई कमाई होगी आपके हिसाब से? अभी तो सीख रहे, जब सीख के प्लेयर बनेंगे तो फिर आगे देखेंगे। अच्छा, तो उसको भी आप शाम को धारावी में ही प्रैक्टिस करते हो, या फुटबॉल प्रैक्टिस होता है? यानी एकोन की तरफ से हम लोग का फुटबॉल प्रैक्टिस भी होता है। इधर सेंट जेवियर कॉलेज है, उसके ग्राउंड में हम लोग को संडे को प्रैक्टिस मिलता है फुटबॉल का। अच्छा, तो धारावी रॉक्स में कितने नॉर्मली होते हैं मेंबर्स? है तो 18 जने। हाँ, 2 लेडीज़ भी है, और मतलब और भी दोस्त लोग हैं, तो उनकी जॉब है तो इसलिए वो आए नहीं,
काम पे गए लोग। तो जो लड़कियां हैं, लड़कियां उनकी क्लास चालू है, थोड़ी ओरल पेपर एग्जाम है, तो इसलिए उन लोग आए नहीं थे। 10 का ओरल चल रहा है, इसलिए उन लोग नहीं आए। एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदर रहे, एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदर रहे, जो खनकी पायल मस्ती में जो खनखन खनखन अम्मा 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 ए अम्मा 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 ए अम्मा 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 ए अम्मा अम्मा 1 2 3। अच्छा, तो ज़्यादातर जो हैं सुबह जाते हैं स्कूल, हाँ, और शाम को प्रैक्टिस होता है। एक दो जने हैं जो नाइट स्कूल करते हैं। तो जो नाइट स्कूल करते हैं वो सुबह क्या करते हैं? सुबह उन लोग अपना जॉब करते हैं, नहीं जैसे तो कि? पढ़ाई भी करते हैं। उनकी जॉब बोले तो मतलब ऐसी बाजू में रोड है, तो उनके इधर काम करते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब 1 आध घंटे के लिए। फिर वो अपने पढ़ने चले जाते हैं। ट्यूशन भी है। हाँ। और जो लड़की लोग का है उनका भी छुट्टी हो जाता है, तो उन लोग ट्यूशन जाते हैं और घर पे भी काम रहता है। अच्छा अच्छा, तो लड़कियां जो हैं ज़्यादातर गाती हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती है? नहीं, ड्रम भी बजाते हैं और शेकर भी बजाते हैं। बॉटल अच्छा अच्छा। बॉटल रहता है, तो उसमें हम लोग चावल भर के, तो वो लोग शेकर बजाते हैं। तो नेक्स्ट क्या मूव है आप लोगों का? ये तो इतने सारे जगह आप लोगों ने बजा लिया है देश में, तो इसके बाद और क्या एम्बिशन क्या है? हम लोग जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, मतलब इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर जाओगे तो क्या मतलब नए ऑडियंस के साथ सामने बजाना चाहोगे? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बैंड ग्रुप है, हम लोग सब वहाँ तक पहुँचे, कि हम लोग दिखाना चाहते हैं कि रिसाइकल से हम लोग क्या बजा सकते हैं। आप भी बजा सकते हो, जो आप कचरा समझ के फेंक देते हैं। हाँ। उनको घर में ही रख के तुम कुछ सीखना चाहिए, उसको बनाओ, वो चीज़ को फेंको मत। हाँ। बाहर इतनी वैसे भी। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो 5 साल रहे हो इस बैंड के साथ, सबसे बढ़िया मेकओवर जो है रिसाइकल प्रोडक्ट का कौन सा रहा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सभी है। नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग कुछ तो होगा, एक चीज़ वही बॉटल है। तो वो कैसे हुआ? उसको कैसे इंक्लूड किया आपके बैंड में? वो तो मतलब आवाज़ पे है ना, तो उसको जैसे भी अभी ढोल होते हैं गणपति में जो बजाते हैं, तो एक जो लोग बजाते हैं ऐसा छन छन करके, तो वही ऐसी उसमें बॉटल में भी आता है, वो पोजीशन वही लेता है। तो फिर हम लोग ने बॉटल को, जो सर ने बोले कि बॉटल देखो कभी भी गणपति में, तो छन छन जो चीज़ रहती है वो चीज़ बॉटल में भी बच सकती है। ज़रूरी नहीं कि वही ला के बजाना चाहिए हमें, उस पर भी बच सकता है। तो इसलिए फिर तो बॉटल उसको बजाने को सीखना कितना टाइम लगा? अभी तो वो बॉटल में नहीं बता सकता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज है कि बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बजाना है। So may all the aspirations of Dharavi Rocks come true, and hope more people take to waste products as instruments and take this music forward. खुल के बोल, दिल से बोल, let's go Dharavi!